ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே प्रभु यीशु मसीह के नाम में அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்। प्रिय लोगों, आप सभी को ஞானஸ்தானத்தை अभिवादन। குறித்த சில मुख्यமான बपतिस्मा के சத்தியங்களை बारे में நாம் आज பார்க்க कुछ போகிறோம்। सत्यों को हम உங்கள் பென் देखने பேப்பரை वाले हैं। எடுத்துக்கோங்க। अगर आपके पास ஏன்னா अगर இந்த पेन पेपर है சத்தியங்கள் तो आप ले மிகவும் लीजिए, அவசியமானது। क्योंकि ये सत्य जो இந்த है बहुत ही சத்தியங்களை आवश्यक है। பேசுவதற்கு ये காரணம் सत्य என்னவென்றால் நிறைய सत्यों நேரங்களில் के आपके बीच में बात करने का ஞானஸ்தானத்தில் कारण क्या है இருக்கிற कि अनेकों சரியான समय में புரிதல் இல்லாமல் बपतिस्मा के बारे में एक सही கடந்து வந்து समझ नहीं होने के ஞானஸ்தானத்தை कारण लोग எடுக்கிறதுடைய बपतिस्मा ले நிமித்தமாக लेते हैं। அந்த प्रिय लोगों, தேவனுடைய उस அந்த कारण से உள்ளத்துக்குள்ளே அவங்களால परमेश्वर की பிரவேசிக்க முடியாது। ஏன்னா परिपूर्णता के अंदर ஸ்திரீகளோடு वो சில प्रवेश காரியங்கள் नहीं कर சரியில்லாமல் पाते हैं இருக்கும் பொழுது और वो இது परमेश्वर என்னுடைய के जो आधारभूत கருத்துக்கள், कार्यों में மற்ற सही नहीं வேதவசனத்தின் रहते। ये அடிப்படையில் मेरी நீங்கள் समझ ஆராய்ந்து है। பார்க்கலாம்। आप बाइबल के वचन के अनुसार आप அநேக जांच कर நேரங்களில் देख நம்ம सकते हैं। अनेक समय में அதிகமாக கவனம் हम செலுத்துவது மனம் திரும்புதல் हम क्या ध्यान ज़्यादा देते தேவனுக்கு हैं कि मन फिराव के அர்ப்பணிக்க ऊपर வேண்டும் ध्यान देते हैं, கவனம் செலுத்துகிறோம்। परमेश्वर के लिए பிரியமானவர்களே, समर्पित करना அது है, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ஞானஸ்தானத்தின் ஒரு प्रिय लोगों, சிறிய बपतिस्मा ஒரு में பங்கு एक தான்। एक छोटा ஆனால் भाग है, முக்கியமான பங்கு लेकिन என்னவென்றால் मुख्य भाग இயேசு क्या है कि கிறிஸ்துவுக்குள்ளே यीशु சேர்க்கப்படுகிற मसीह के ஞானஸ்தானத்தை अंदर அது பின்பதாக அந்த जोड़ा जाना, சத்தியங்களை நாம் பார்க்கலாம்। यीशु मसीह के அப்போஸ்தலர் अंदर 19 जोड़ा அதிகாரத்தை जाना। நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் प्रेरितों के काम 19 3 अध्याय को 5 अगर हम ले लेंगे வசனங்களில் तो அங்க இருக்கிற उसका மக்கள் 3 से வந்து 5 பரிசுத்த वचन में ஆவியானவர் वहाँ யார் पर என்று रहने தெரியாமல் वाले இருந்தது। लोग जो हैं அப்பொழுது उन्हें அவங்களுக்கு पवित्र பவுல் आत्मा कौन है பேசும் उसके பொழுது बारे அந்த में वो नहीं जानते हैं। யோவானின் तो जगह पर पौलुस उन ஞானஸ்தானத்தை लोगों தான் से बात எடுத்தான்। करते समय யோவானின் तो वो लोग ஞானஸ்தானம் बोलते हैं कि மனம் मैंने திரும்புதல் हम ஞானஸ்தானம்। लोगों ने यूहन्ना का இன்னைக்கு बपतिस्मा நிறைய लिया है और நேரங்களில் यूहन्ना का बपतिस्मा யோவானின் क्या है कि ஞானஸ்தானம் தான் मन நமக்கு फिराव का बपतिस्मा। கொடுக்கப்படுகிறது என்று आज சொல்லி நாம் अनेकों समय யோசிக்கலாம்। में यूहन्ना का ஏனென்றால் बपतिस्मा ही யோவானின் अनेकों समय ஞானஸ்தானம் में மனம் दिया जाता திரும்புதல் है, ஞானஸ்தானம்। क्योंकि உடனே பவுல் यूहन्ना என்ன का சொல்றாரு? बपतिस्मा जो था कि मन இல்ல, फिराव का இயேசு बपतिस्मा था, கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக लेकिन நீங்கள் पौलुस तुरंत क्या ஞானஸ்தானம் कहता எடுக்க है कि வேண்டும் என்று आप சொல்லி यीशु கொடுத்ததுக்கு मसीह के பின்பதாக अंदर பரிசுத்த आपको ஆவியானவரை बपतिस्मा குறித்து लेना है, तो ஜெபிக்கும் उसके பொழுது बाद பரிசுத்த वो बपतिस्मा ஆவியானவர் लेता है, तो उसके அவர்கள் बाद மேலே पवित्र பலத்த आत्मा के लिए வகையில் प्रार्थना இறங்குவதை करते हैं, तो பார்க்கலாம்। उनके ऊपर पवित्र आत्मा बलवंत रूप से ஸோ उतरता है, இதனுடைய उसे हम அர்த்தம் என்ன? देखते हैं। மனம் திரும்புதல் तो इसका அவசியம் अर्थ இல்லையா? क्या है இல்ல, कि மனம் திரும்புதல் मन அவசியம், फिराव की விசுவாசமும் जरूरत नहीं है அவசியம்। क्या? नहीं, ஏன்னா मन फिराव की பேதுரு जरूरत है, பிரசங்கம் विश्वास की பண்ணும்பொழுது भी மனம் जरूरत है, திரும்பி क्योंकि ஞானஸ்தானம் पतरस जब எடுன்னு प्रचार சொல்றார்। करते பவுல் समय मन அந்த फिराव कर சிறைச்சாலையின் बपतिस्मा அதிபதிக்கு लीजिए, ऐसा पतरस प्रचार பேசும்பொழுது करता என்ன है। சொல்றார்? तो जब விசுவாசி இன்னும் पौलुस வீட்டார் भी जब जेल में விசுவாசிக்கணும்। था, மனம் तो उस திரும்புதல் जेलर को விசுவாசம் उस जगह மிகவும் पर वो அவசியமான मन फिराव के लिए ஏன்னா बोलता है। तो ये मन फिराव ஞானஸ்தானத்தில் बहुत அதுக்கு आवश्यक மேலாக है, அநேக காரியங்கள் लेकिन இருக்கிறது பிரியமானவர்களே। அதுதான் बपतिस्मा நாம் में और பார்க்க भी போகிறோம்। उससे बढ़कर बहुत से 1 कार्य हैं, பேதுரு उन्हें ही हम देखने वाले हैं। 3 पहला அதிகாரம் पत्रस 21 வசனத்திலே तीसरा நன்மனசாட்சி अध्याय उसका வரும்படிக்கு 21 वचन என்று में लिखा हुआ है சொல்லியிருக்கிறது कि ஞானஸ்தானம்। शुद्ध ஸோ विवेक से முதல்ல परमेश्वर के बस ஞானஸ்தானம் में जाने का எடுக்கிறவர்கள் अर्थ है। அந்த तो நன்மனசாட்சி देखिए, அவங்களுக்கு पहला जो வர क्या है வேண்டும்। कि क्लियर बपतिस्मा कॉन्शियस लेने वाले के अंदर वो இயேசு கிறிஸ்துவின் शुद्ध ரத்தம் विवेक होना அவங்களுக்கு है। கழுவிருக்கிறது यीशु என்ற मसीह का நிச்சயம் அவங்களுக்கு लहू இருக்கிறது। मेरे पापों को धोया है, ये உடன்படிக்கை निश्चय அப்படின்னு उसके अंदर சொல்லும் रहना பொழுது है। और ये ஒரு जो கணவன் देखिए ஒரு उसके மனைவி वश में जाना, அங்க तो இணையும் जैसे किस பொழுது तरीके से एक पति செய்கிற पत्नी जब वो உடன்படிக்கை दोनों போல मिलते हैं, तब उनके ஒருவேளை साथ जो वो மோதிரம் वाचा அணிந்து बांधते हैं, वो வச்சுக்கொள்ளலாம், ताली उसके அணிந்து अनुसार जिस கொள்ளலாம்। प्रकार அது से एक समय में कोई உடன்படிக்கை मंगलसूत्र நிறைவேறும் மட்டும் पहनाता அப்படி है या செய்ய अंगूठी पहनाता है, ஞானஸ்நானம்ன்றது तो ஆண்டவரோடு கூட ये सब जो நான் है वाचा இணைகிறேன்ங்கிறது का एक ஒரு चिन्ह है। அடையாளமாக ये செய்யப்படுகிற सब ஒரு जो है कि செயலாக ये இருக்கிறது। சொல்லப்பட बपतिस्मा வேண்டிய ஒரு के द्वारा முக்கியமான ये காரியம் बपतिस्मा में என்னவென்றால் ये जो कुछ அது क्रिया हैं जो हम தண்ணீருக்குள்ள परमेश्वर போகும் के साथ பொழுது जुड़ रहे हैं, தண்ணீரிலிருந்து तो அதுக்கப்புறம் வெளியே வரும் तो பொழுது जब हम இயேசு கிறிஸ்துவின் पानी के अंदर மரணத்தையும் जाते समय और जब पानी அவருடைய के अंदर से அடக்கத்தையும் बाहर आते உயிர்த்தெழுதலையும் समय, तो நாம் हम क्या है कि சாட்சியாக यीशु அந்த मसीह செயலின் के மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறோம்। मृत्यु को और ஸோ उसके இது जी ரொம்ப उठने के முக்கியமானது। हम उस இந்த क्रिया के தண்ணீருக்குள்ள द्वारा போகும் பொழுது हम प्रकट இயேசு करते हैं। तो ये கிறிஸ்துவின் बहुत மரணத்தை मुख्य है। நான் जब हम வெளிப்படுத்துகிறேன்। पानी के अंदर जाते தண்ணிக்குள்ள समय இருக்கும் பொழுது यीशु मसीह के அவருடைய அடக்கத்தை मृत्यु को हम வெளிப்படுத்துகிறேன்। प्रकट करते हैं, और தண்ணீரிலிருந்து வெளியே पानी के வரும் பொழுது अंदर அவருடைய जब रहते உயிர்த்தெழுதலை समय तो उसके வெளிப்படுத்துகிறேன்। गाड़े जाने का प्रकट करते हैं, இரண்டாவதாக और जब वो पानी से हम बाहर வெளிப்படுத்துவது निकलते हैं तो என்னவென்றால் उसके जी उठने को प्रकट करते என்னுடைய हैं। दूसरी பாவமான क्या बात है, சரீரம் क्या हम प्रकट करते हैं? அவரோடு கூட मेरे மரித்ததை पाप के வெளிப்படுத்துகிறேன்। शरीर को அடக்கம் उसके பண்ணப்பட்டதை अंदर வெளிப்படுத்துகிறேன்। मर गया है, ரோமர் उसे हम 6 प्रकट करते हैं, அதிகாரத்தில் 3 और 4 उसके साथ गाड़ा வசனத்திலே गया उसे நீங்கள் हम அந்த தொடர்ச்சியான प्रकट करते हैं। ரோமரை நீங்க रोमियो படிக்கும் 6 பொழுது अध्याय उसका 3 और ஆண்டவராகிய 4 இயேசு वचन में हम கிறிஸ்து पढ़ सकते हैं। சிலுவையிலே மரிக்கும் उसमें अगर பொழுது लगातार जब हम என்னுடைய पढ़ते பாவ समय में சரீரம் அவரோடு கூட यीशु मसीह மரித்தது, जब क्रूस पर मरते அடக்கம் समय பண்ணப்பட்டது। இப்போ புது वो मेरा மனுஷனாக நான் पाप का உயிரோடு शरीर கூட उसके साथ मारा அவரோடு கூட गया நான் और गाड़ गया, எழுப்பப்பட்டிருக்கிறேன்। அது और मैं சிலுவையிலே अभी एक नए நடந்துருச்சு। मनुष्य के ஸோ साथ मैं ஞானஸ்தானத்தில் खड़ा அதை हुआ நான் हूँ। அங்கீகரிக்கும் देखिए, ये जो பொழுது क्रूस அதை पर हो गया, விசுவாசத்தில் देखिए வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது बपतिस्मा அப்படியே அந்த बपतिस्मा में இடத்துல जब हम इसे நடக்கிறது। अंगीकार करते பாவ समय சரீரம் तो மரிக்கிறது, इस प्रकार से பாவத்துக்கான उस जगह पर நியாயம் होता है, पाप முறிக்கப்படுகிறது का शरीर பிரியமானவர்களே। मरता அதான் है, பவுல் அந்த और ரோமர் पाप 6 के அதிகாரத்தில் प्रति சொல்ல जो நீங்க गुलामी है वो பாவத்துக்கு उस जगह पर அடிமைகள் அல்ல खत्म என்று खत्म சொல்லி हो जाती சொல்லுகிறார்। है। ஸோ तो पौलुस ஞானஸ்தானத்திலே அது बोलता है वो 6वें கரெக்டாக अध्याय அந்த में कि
अभी से हम पाप के गुलाम नहीं हैं। तो बपतिस्मा में जब हम इस प्रकार से करेक्ट रूप में करते समय ஞானஸ்தானத்துல ஏற்படுகிறது
तो हमें सत्य के आधार पर करते समय तो बपतिस्मा एक बड़ा छुटकारा आता है। और मैं अगला जो बोलने वाला मुख्य कार्य क्या है कि बपतिस्मा में हम यीशु मसीह के साथ हम जुड़ते हैं। ये देखिए, एक मसीह के साथ हम एक जुड़ते हैं तो वो एक मसीह के साथ जुड़ने का वो एक कार्य है। मैं सोचता हूँ इस सत्य को हम सुने नहीं है। गलातियों जो लिखा हुआ है वो गलाती की पुस्तक में 27 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बपतिस्मा लिए वो उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो देखिए, बपतिस्मा के अंदर हम लोग मसीह के अंदर आते हैं। वही केवल नहीं, मसीह हमारे अंदर वास करना शुरू करता है। वही केवल नहीं, 28 वचन से जब देखते समय तो ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई अन्य जाति है। तो इस सत्यों को हम लगातार देखते। इसका अर्थ क्या है कि मसीह के अंदर हम केवल जोड़े ही केवल नहीं जाते हैं, परंतु हम उसके शरीर के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो जब बपतिस्मा लेते समय, जब हम इस समझ के साथ जब बपतिस्मा लेते समय, प्रिय लोगों, पाप से केवल छुटकारा केवल नहीं है, हम परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक अनुभव आता है, परमेश्वर का जीवन आता है, परमेश्वर की धार्मिकता आती है। तो उस दिन से लेकर उस मनुष्य के अंदर वो एक नई मनुष्य के रूप में वो जीना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है। आप इस समय में, आप इस सत्य को सुनते समय आप सोच सकते हैं कि जब मैं बपतिस्मा लिया तब मेरे को सत्य नहीं मालूम था क्या मुझे दोबारा लेना है क्या बपतिस्मा। नहीं, जरूरत नहीं। आप कितने साल पहले ही आप बपतिस्मा ले लियो, लेकिन अभी अगर आप इस सत्यों को अभी इस समय में विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो परिपूर्णता को आपके जीवन अनुभव करने के लिए मदद करेगा। वह आपके सारे सत्यों के अंदर आपको और आपकी धार्मिकता के अंदर आपको लेकर चलाएगा। परमेश्वर आपको लगातार अगुवाई करे। परमेश्वर